call is now being recorded. In today's class, I will be talking about various trigonometric formulas. We already did consider following list of few formulas. Quick review: sin A plus B, sin A cos B plus cos A sin B, and sin A minus B, sin A cos B minus cos A sin B. Similarly, I did talk about this particular formula. Cos A plus B is cos A cos B minus sin A sin B. Cos A minus B, cos A cos B plus sin A sin B. Then followed by these two formulas, tan A plus B is tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. Tan A minus B is tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. Followed by the formulas for cot x plus y. आप a plus b की टर्म में याद करो x plus y, it doesn't make any difference. So cot x plus y is cot x cot y minus 1 upon cot y plus cot x, and cot x minus y is cot x cot y plus 1 over cot y minus cot x. So one need to be look at the symmetry which is existing in all these formulas. So if I'm able to learn this particular formula, by default, I can go for cot x minus y. Then we did consider the following two formulas. In a better way, I have mentioned these over here. Sin square A minus sin square B. Sin A plus B into sin A minus B. And cos square A minus sin square B is cos A plus B into cos A minus B. There is no direct formula for cos square A minus cos square B. Then the following four formulas, very important. This can be avoided क्योंकि ये फर्स्ट फार्मूला से ही बन सकता है. आप इस साइन और कॉस को बस इंटरचेंज कर दीजिए. So 2 sin A cos B is given by sin A plus B plus sin A minus B, and 2 cos A cos B, cos A plus B plus cos A minus B, and 2 sin A sin B का बताया था cos A minus B minus cos A plus B. And this is your important observation. यहाँ cos A minus B पहले आ जाता है. सब में आप देखिए पहले प्लस वाला फार्मूला है, a प्लस बी है, बट इस वाले फार्मूला में पहले a माइनस बी आता है. तो लर्न दिस, ऑब्जर्व और फिर ढंग से इसे याद करेंगे. तो दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी कंसीडर्ड इन आवर लास्ट क्लास. अब list of another 4 new formulas for you. Please make a note of it, and then I will continue. I assume that you all are working along with me. You are making the note of these formulas. और रजिस्टर में फर्स्ट 2-3 पेजेस आपने इस चैप्टर के बिगिनिंग में रख दिए हैं, just to list down all the formulas. So set of these 4 formulas. Make a note of this and mark your attendance.
Mark your attendance quickly. So you find that in the following set sin A plus sin B के फॉर्मूला की बात करी है. It is not sin A plus B. चेक करिए, sin A plus B अलग चीज थी. ये रहा बेसिक फॉर्मूला sin A plus B का. और अब जो हम बात कर रहे हैं वो sin A plus sin B की कर रहे हैं. Sometimes students get confused and mix both of them. So be very careful. Sin A plus sin B होता है 2 sin A plus B by 2 into cos A minus B by 2. और sin A minus sin B, just that ये sin और cos आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे. ये cos और ये sin इन्हें इंटरचेंज कर दो. तो I have the formula for 2 sin A, sin A minus sin B, 2 cos A plus B by 2 into sin A minus B by 2. Similarly, cos A plus cos B का हो गया 2 cos A plus B by 2 into cos A minus B by 2. और cos A plus cos B है. अगर होता cos A minus cos B, another change to note. यहाँ एक तो माइनस आता है, minus 2 sin A plus B by 2 into sin A minus B by 2. Just to maintain the symmetry of A plus B by 2 and A minus B by 2, in all the formulas we have taken negative common. अगर मैं चाहता तो इस माइनस को इसमें कर देता अगर, तो ये A माइनस B की जगह B माइनस A हो जाता. तब आपको बाहर नेगेटिव साइन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो वट एवर वे यू आर कन्वीनियंट यू कैन यूज दैट. रोहित, आपने अभी ज्वाइन करा है ना? अटेंडेंस तो कब से हो चुकी है? Check out cos A plus cos B and cos A minus cos B. In these formulas दोनों सेम होते हैं. ये cos cos है और ये sin sin है. So this is the way you can learn these formulas. I'm sure everyone has made a note क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होंगे. Let us move on to the next list of few more formulas. Double angle formulas. Sin 2A, cos 2A, tan 2A. So focus on sin 2A. तो स्टार्ट करिए. sin 2A का फॉर्मूला 2 sin A cos A होता है. And also it is a need based. If required, I am to use this formula as well. क्यों? क्योंकि sin 2A का एक्चुअल फार्मूला, अनदर फार्मूला 2 tan A अपॉन 1 plus tan square A भी होता है. It can easily be justified also that why these formulas are working. Though again formula proving is not required. मैं एक आइडिया हिंट आपको क्विकली चलो दे देता हूं. आई कैन राइट दिस एज 2A को लिख दिया A प्लस A और फिर मैंने फॉर्मूला लगाया, कौन सा सोचा, साइन A प्लस B का. साइन A प्लस B होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B. ये तो हम स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं. तो अब A और B इक्वल है, तो आप इस फॉर्मूला में B की जगह A लिख दीजिए.
नोट दैट ये और ये टर्म सेम आ गई, तो दिस इज रिपीटिंग, तो दिस इज 2 sin a cos a, hence the formula. So proving is again not much difficult, but just even it may waste my 30 seconds if I am going for a proof part. तो इसीलिए let us avoid it, but otherwise you can easily prove. इसमें अगर आपको मान लो प्रूव करना होता दिस वन इस फार्मूला में, तब आप tan को sin cos में चेंज कर दीजिए और चेक कर लेना वो इसके इक्वल आ जाएगा. Same way, let us now focus on the cos 2ak formulas. Cos square a minus sin square a. The first important formula, 2 cos square a minus 1. 1 minus 2 sin square a. And 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. So check it out. Cos 2a के 4 different formulas आ रहे हैं. They are all need based. Question के ऊपर depend करेगा whether I have to use the first one, second one, third one or the fourth one. And that is only become clear when I have a good enough practice. तो चेक करिए cos 2a का अगर मुझे फार्मूला सोचना है तो cos 2a है अगेन सेम वे a प्लस ए, और ये हो गया cos a प्लस b. क्या होता है cos a प्लस b का फार्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b. तो आप b की जगह a लिख दीजिए, cos a minus sin a sin a, and hence you have the formula. First one आ गया cos square a minus sin square a. अब मान लीजिए मुझे अपना फार्मूला सिर्फ चाहिए cos की टर्म में, तो आप sin square a को लिख सकते हैं 1 minus cos square a. ये तो 10th का ही फार्मूला है. And when you open the bracket, cos square a minus 1 और minus minus plus हो जाएगा, which gives me ये like term आ गई 2 cos square a minus 1. Our formula. Same way you try out in your homework how to get the third one. Fourth one के लिए change in sin and cos. वो ये दे देगा. नेक्स्ट देखिए tan 2a. इसका फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a. हमें पता है tan a प्लस b का फार्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 माइनस tan a tan b. ये फार्मूला ऑलरेडी हमने देखा हुआ है. आप इसमें b को रिप्लेस कर दो a से, तो tan a प्लस a क्या बन जाएगा, b की जगह a रख दो, tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस, यहां पर भी b को रिप्लेस कर दिया a के साथ, एंड इट विल गिव मी 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है. चेक इट आउट. ये आ गया था tan 2a. तो tan 2a का फॉर्मूला हमने एक तरह से जस्टिफाई कर दिया है. बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. इवन अगर आप कंसिडर करते हैं cos 2a वाला फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैसे हो रहा है, इसकी हेल्प से आई कैन गो ऑन डराइविंग दी अदर फार्मूलाज. जैसे मान लीजिए मैं इसे और इसे कंसिडर कर रहा हूँ,
cos 2a किसके इक्वल था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। लुक केयरफुली, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। ये फॉर्मूला कैसे आया है डायरेक्ट याद करना है। और कैसे रहा होगा? cos 2a हमारे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, रीअरेंज दी टर्म्स। तो 2 साइन स्क्वायर a कितना आ गया? ये लेफ्ट में आ गया, ये राइट में आ गया। 1 माइनस cos 2a और 2 से डिवाइड कर दीजिए। साइन स्क्वायर a विल बी 1 माइनस cos 2a, टेकिंग ये 2 से डिवाइड हो गया और स्क्वायर रूट ले लीजिए तो साइन a आ जाएगा। डू नॉट फॉरगेट प्लस माइनस, वेरी इंपॉर्टेंट। हेंस दी फॉर्मूला फॉर साइन 2a ये रहा। चेक करो, यही हमारा आया है फॉर्मूला। Same way you can get the formula for cos a like this. तो आपको इस तरह से ये एक्सप्रेशन भी याद होने चाहिए। क्या? cos square a can be written as 1 plus cos 2a by 2। कोई नई चीज नहीं करी है मैंने, सिर्फ मैंने क्या किया है, I did focus on दिस फार्मूला और इसे मैंने इसके साथ ले लिया, इन दोनों को कंसीडर किया एंड रीअरेंज दी टर्म्स। आई विल गेट दिस फार्मूला। बट cos स्क्वायर a मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल ऑब्जर्व हमें इसे पावर को नहीं रिक्वायरमेंट होगा, तो आई विल यूज द कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूला एज 1 प्लस cos 2a बाय 2। प्लीज मेक अ नोट ऑफ द फार्मूलाज। जो प्रिंटेड वाले आपके डायरेक्ट रहे थे उन्हें पहले लिख लीजिए। आई एम वेटिंग। Please note them and mark your attendance। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे स्टार्टिंग में और एंड में लेनी है। मार्क योर अटेंडेंस वंस अगेन एवरीवन। So at least 4-5 students still haven't marked. Okay. Consider the next set of 3 formulas और इनको क्या नाम दे सकते हैं? ट्रिपल एंगल फार्मूलाज। साइन 3a, cos 3a, tan 3a, hence triple angle formulas. So check it out. Sin 3a is given by 3 sin a minus 4 sin cube a. Cos 3a 4 cos cube a minus 3 cos a, and tan 3a is given by 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट लर्न करना है।
चेक इट आउट। जैसे हमने देखा, मैं cos 3a का फॉर्मूला चलो ले रहा हूं। cos 3a 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए बताया है। सो लेट अस प्रूव दिस फॉर्मूला, और मेनी अदर फॉर्मूलाज विल बी यूज्ड, तो वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप कंसिडर कीजिए LHS cos 3a, नोट केयरफुली। 3a को मैं लिख सकता हूं a प्लस 2a, कॉमन सेंस। एंड फिर अब आप एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, व्हाट इज cos a प्लस b? cos a cos b माइनस sin a sin b, ये यूज करेंगे। और आप b को रिप्लेस कर दीजिए बाय सिंपली 2a, तो ये b हो गया इन दिस फॉर्मूला। तो क्या बन जाएगा यहां? cos a cos 2a, b की जगह 2a लिख दीजिए। अब आंसर इज इन टर्म्स ऑफ cos ओनली, तो हम सारे फार्मूला cos के सोचते हैं। cos 2a होता है 2 cos square a minus 1। check out your formula list, I assume it is in front of you, अगर अभी याद नहीं भी हुए हैं। और फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, साइन ए, और साइन 2a का फार्मूला हमने याद करा था 2 sin a cos a। ये एज इट इज। अब अगर आप ध्यान से देखें, 2 cos a अलग कर दो, और क्या बच गया? साइन स्क्वायर a। और साइन स्क्वायर a कैन बी रिटन एज, चलो पहले ये लिख देता हूं, साइन स्क्वायर a इसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ये तो आपने 10th में ही किया हुआ है। ओपन द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई, यू कैन ऑब्जर्व ये इसके इक्वल आ जाएगा, हेंस द फार्मूला। सो प्रूविंग ऑफ फार्मूला इज अगेन नॉट डिफिकल्ट। अ स्टूडेंट आस्क्ड मी कि ये प्रूफ कैसे करते हैं, रिक्वायरमेंट है। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट इन जर्नल, प्रोवाइडेड द बेसिक आइडिया इज क्लियर कि आपको प्रूविंग का पहला स्टेप क्या लेना है, एंड देन व्हाट इज द नीड कि आंसर कॉस की टर्म में चाहिए। तो उसके अलावा जो जो टर्म्स हैं मैं उनको चेंज करते चलूंगा यूजिंग वेरियस फार्मूलाज। एटलीस्ट इन होमवर्क आप साइन 3a का प्रूफ कर सकते हैं। पॉसिबल tan 3a का भी है। बट अब आप सोच के देखिए, अगर आप फॉर्मूला भूल गए cos 3a का इन एग्जाम, तो इतना मैं प्रूविंग में जाऊं अननेसेसरी? लेट मी इन्वेस्ट माय 3 मिनट्स इन प्रूविंग दिस फार्मूला। आराम से 3 मिनट्स 2 मिनट्स तो लगेंगे कम से कम, तो वाई टू वेस्ट द टाइम? इसीलिए हाईली रिकमेंडेड, लर्न द फार्मूलाज, नो एस्केप नो चॉइस। बार बार रिपीट कर रहा हूं, याद रखिए इस चीज को। Any question, any doubt till now? नो सर। बाकी और भी देख लीजिए, अगर कोई भी किसी को डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क, बट इन होमवर्क ट्राई टू प्रूव द अदर फार्मूलाज। अनदर फार्मूला, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। वी कंसिडर दिस एज इन दी हॉट्स। तो अगर बाई चांस पूरे पेपर में एक दो क्वेश्चंस टिपिकल होते ही हैं, अगर हॉट बेस्ड क्वेश्चन अगर बनना है तो वो यहां से पॉसिबल हो सकता है। आई विल टेक अ सिंपल एग्जांपल, पहले समझिए इस फार्मूला को। cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 क्यूब a
एंगल आपका 2 के मल्टीपल से होते जा रहा है मल्टीप्लाई, राइट। और यहां लास्ट में सोच के देखो ये n-1 आया है। कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी टर्म्स आर दीज? टोटल कितनी टर्म्स है एलएचएस में? नोट केयरफुली, हाउ मेनी टर्म्स आर दीज? Only one term, sir. ओनली वन नहीं, मल्टीप्लाई में कितनी टर्म्स हैं? ये 1 है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, करते करते हाउ मेनी टर्म्स आर दीज? n-1. These are n terms. Look carefully. यहां पर भी तो कुछ लिखा है। तो a से पहले क्या मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूं? a को मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर 0 से, फिर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। तो अगर आप 2 की पावर्स को ध्यान से देखें तो क्या लिखी हुई है? 0, 1, 2, 3 अप टू n-1। तो 0 से लेकर अगर आप n-1 तक की बात करते हैं, दे आर n नंबर्स। तो दीज आर n टर्म्स का प्रोडक्ट एंड दिस इज गिवन बाय डायरेक्ट फार्मूला। लर्न दिस फार्मूला, पहले तो लिख लीजिए। एंड अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला इज हेयर। ये आपको प्रूव करना है। तो लुक एट एलएचएस केयरफुली। cos 20, cos 40, cos 80। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है। cos 40 को मैं 2 इंटू 20 लिख सकता हूं, और cos 80 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 20। ऊपर वाले फॉर्मूला से टर्म मैच कर रही हैं, तो आप चेक करिए। अगर आप ऊपर वाला फॉर्मूले को ध्यान से समझें, नंबर और टर्म्स हो गई 3, ए हो गया 20 डिग्रीज। ये दो चीजें ही तो मुझे चाहिए। तो आंसर क्या होगा? फार्मूला ये बता दिया है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर के n3 कैसे है। एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है प्रोडक्ट की, ये तीसरी टर्म है, तो 3 टर्म्स आई हैं, तो n इज 3। और एंगल को कंपेयर करो तो ये a हो गया, तीनों में आ रहा है a, 2a, 2 स्क्वायर है। और अब आप बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, n की जगह 3 और a की जगह 20 डिग्री। और यहाँ क्या है? 2 क्यूब बाहर आ जाता है और ये साइन 20। व्हेन आई सिंप्लीफाई दिस, 8 इंटू 20 डिग्री आ गया, और ये हो गया 8 इंटू साइन 20 डिग्रीज। ये आ गया साइन 160 डिग्री। थिंक लॉजिकली। साइन 160 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 20। ये वैल्यू मैं निकालने सिखा चुका हूं। कैसे निकालते हैं? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। वन एट्टी माइनस थीटा, ये है 180, और माइनस थीटा का मतलब आई एम इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। साइन 20 से साइन 20 कैंसल, 1/8 योर रिक्वायर्ड आंसर। सोचिए ध्यान से। आई एम श्योर कि अब अगर आपके सामने मैं क्वेश्चन देता हूं, व्हाट इज cos 20, cos 40
cos 80 cos 160 डिग्रीज प्रोडक्ट के अंदर। कैन एनीवन टेल मी ये आंसर कितना होगा? अप्लाई अ सिंपल लॉजिक। एनीवन? Sir, 170. नो। हाउ? सिंपल Sir, सोचो भाई। I चार am टर्म नहीं asking है। the question. Please repeat it, sir. क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है आपके। कॉस्ट ये रेड कलर से ऊपर देखो भाई, सामने है क्वेश्चन। कॉस 20 कॉस 40 डिग्री कॉस 80 डिग्रीज कॉस 160 डिग्रीज, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ध्यान से नोट करो तो ये 20 डिग्रीज, फिर 2 इंटू 20 डिग्रीज, फिर कॉस 80 क्या हो गया 2 स्क्वायर इंटू 20 डिग्रीज। और अगर आप नेक्स्ट टर्म को ध्यान से देखें, इजंट इट 2 क्यूब इंटू 20 डिग्रीज। चार टर्म आ गई है, एन हो गया है 4, 1/2 पावर 4। एक्चुअल में आप चेक करेंगे ये 1/16 आ रहा है। इसी प्रॉब्लम का एक्सटेंशन मैंने आपको बता दिया है, दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। Sir, we will take in the terms of 20 or we can also take in the terms of 10. एनीथिंग, बट यहाँ वो फॉर्मूला 2 इंटू की टर्म्स में बनना चाहिए। इस क्वेश्चन में वो 20 दिया है, तो हो सकता है वो 35 डिग्री की टर्म में होता, बट वो नेक्स्ट टर्म 70 डिग्री होनी चाहिए। अगर मैंने 35 डिग्री लिया है ए को, तो ए अगर आपका 35 डिग्री है, इफ ए इज से 35 डिग्री, तो पहली टर्म क्या होगी क्वेश्चन की cos 35। अगली टर्म क्या होनी चाहिए cos 2 इंटू 35। अगली टर्म क्या होनी चाहिए cos स्क्वायर इंटू 35 एंड सो। तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह हम टिपिकल नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ बेसिक इतना ही देखेंगे। बट रिमेंबर दिस इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी। तो अगर आप ये मिस कर देते हैं और पूरी एनसीईआरटी भी कर लिया, तब भी पेपर में आ गया, तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट, लर्न द फॉर्मूला। आई एम श्योर आपने लिख लिया है इस फॉर्मूला को। Now let me consider questions based on the following formulas which already have discussed. Starting with a very few simple questions from NCERT book. अभी तक जितने फॉर्मूला करे हैं डे 1 से, उनकी बात हो रही है। सोच के देखिए, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये भी स्टैंडर्ड है, सिर्फ इसे आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट इज साइन 5π/6? दिस इज पाई माइनस π/6। ये रिवर्स थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एलसीएम लेकर चेक कर लीजिए। अब विच क्वाड्रेंट इज दिस? पाई माइनस π/6 सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, एंड ये ही इसका आंसर हो जाएगा, साइन 30 डिग्रीज विच इज 1/2। मैंने यहाँ बिल्कुल वो प्लस माइनस का कंसेप्ट सोचा है, ये याद रखिए, लिखते हैं ना हम यहाँ पर इससे पहले प्लस माइनस, ये बिल्कुल सोचा है। बट विद प्रैक्टिस अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं वो क्लियर है, आप चेक कर सकते हैं। पाई होता है 2 इंटू π/2, और 2 क्या है इवन नंबर, तो इवन के केस में साइन का साइन रहता है। तो वो सारी चीजें हैं जो इसमें सोचनी रहेंगी।
तो इसीलिए आपकी क्विक प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो रूल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। बस बाकी सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू विल हैव योर रिक्वायर्ड आंसर। कैसे करें इस क्वेश्चन को? ये तो बहुत सिंपल है। एनीवन? यस। I can write 15 as 40 sine. Wait for a second. So आप इसकी जगह 60 माइनस 45 भी लिख सकते थे। 15 को स्प्लिट करा है मैंने इन स्टैंडर्ड एंगल्स, कोई भी एक वर्केबल है, ये कर लेते हैं। तो व्हाट इज साइन ए माइनस बी? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब अगर ये फार्मूलाज मुझे याद नहीं हुए, देन ऑफ कोर्स आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज आवर बेसिक फार्मूला। स्टार्टिंग में हम कर चुके हैं, आपके सामने ही लिस्ट थी। बस अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। साइन 45 कॉस 30 कितना होता है? √3/2 एंड साइन 30 1/2। 1/2। एलसीएम सेम आ गया 2√2 और ऊपर √3 माइनस 1। नो फर्दर कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। So this would be your final required answer. So this is what we wanted. I wanted to cover in today's class. ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए आ गया। लॉजिक लगाना है, सिंपल है, जो आप सभी कर सकते हैं। आई अज्यूम दैट। फॉलोड अच्छा चलिए यहीं तक रखिए ये वाला क्वेश्चन, एंड क्विकली मार्क योर अटेंडेंस फाइनली वंस अगेन, एंड देन यू कैन लीव द क्लास। Mark your attendance and leave the class then. Yes, mark the attendance quickly.